We have to study this exam through themes. India, Middle East conflict is one theme. उसकी हिस्ट्री वगैरह में एक पेज पे पता होनी चाहिए. एक पेज से ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए अपने को रिटर्न उसमें. नोट सोचे ना कि इसमें से कितना एग्जाम में डाल पाए, तो एक बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो हमारा फाउंडेशन है सारी थीम्स के साथ फेमिलियरिटी. उसके बाद नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग और करंट कॉन्टेक्स्ट को एक इंटीग्रेटेड होल की तरह देखो. दिस इज अ ट्रिनिटी टुगेदर एट वर्क. फॉर इंस्टेंस, मैंने नोट बनाया. वी कैन स्टार्ट विद एनी थीम. हम कोई भी थीम लेते हैं, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे नोट बनाया हमने, मतलब क्लाइमेट चेंज पे. अब मेरा नोट है, उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, रीजंस, इम्पैक्ट्स वगैरह वगैरह. फिर मैंने अब इसमें कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए करंट में क्या चल रहा है, मतलब IPCC AR6 की रिपोर्ट डाल दी. जो हमारी मिनिस्ट्री है MOE FCS ने कहा वो डाल दिया. CC ने कहा कोई जजमेंट आया वो डाल दिया. उस नोट में क्लाइमेट चेंज में मैंने फिर क्या कहते हैं ChatGPT किया. मैंने वहाँ से 2 चीज़ें डाल दी. इसको मैंने आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस किया. जब ये सब लाइव हो रहा है, ये मेरा मॉडल एट वर्क है. प्रैक्टिस किया. प्रैक्टिस करने के बाद मैंने उसमें और एनालिसिस डाला कि यार मैं ये और डाल सकता था. फिर मैंने अपने नोट को और बेटर किया और इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स किया. दिस इज वन थीम. आई डिड इट फॉर ऑल देयर आर barely around 800-900 themes in this exam. तुम उन थीम्स पे 3-3, 4-4 आंसर लिख दो. Of course it's a big number, मतलब without saying that it is not easy. This exam you'll understand a code and that code will help you solve this exam n number of times. That is the magic sauce we were talking. I think सबसे important part होता है जब आप नोट्स लिख रहे होते हो. जो लिखने से मेमोराइजेशन होती है उससे बेटर और किसी चीज़ से नहीं होती. एंड मतलब अपने नोट्स वो एक अपने ही रहते हैं, वो एक लेवल ऑफ फेमिलियरिटी बन जाती है. तो जब आप रिवाइज करोगे तो यूल प्रॉब्ली बी 20-30% फास्टर, क्योंकि आपके खुद के नोट्स हैं. सो अगर कोई आके बोले कि ये लो नोट्स और अब तुम IAS बन जाओगे, दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज हैपनिंग. नहीं, मतलब आई एम श्योर बहुत लोग होंगे जो सेलेक्ट नहीं हुए जिनके मेरे से मच बेटर नोट्स हैं. सो दैट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि किसी के नोट्स बेटर हैं तो वो सेलेक्ट हो रहे हैं. वो आपके लिए हिसाब से ठीक होने चाहिए नोट्स. आप जैसे रिवाइज करना चाहते हो उस हिसाब से अच्छे रहना चाहिए. What I did in my later stages was that whenever I was studying anything that was pre-related, that people thought was only for pre, I used to take a different color pen and mark all the things that might be required for mains then and there itself. For example, people say Lakshmikant is not useful for mains, but I wouldn't agree, because when I was reading for pre also, I would take another color pen and mark all the quotes that are written, all the articles that are written, all the fundamental duties, etc., that all the cases that I might be able to use in mains. And then between the time for pre and mains, I used to only have a cursory glance through those colored points. Apart from that also, whenever you're reading monthly magazines or when you're reading material for science and tech and environment, specifically for prelims, what you do is make a different document. I used to make a Google Docs that prelims knowledge in environment for mains. So all the schemes that I might have read in environment, all the reports that I might have seen or I might have read about in prelims, I used to just jot them down in that document and verbatim use those in mains. So that gave me an edge. With regards to PYQs, do not just sit and solve them, because that becomes very easy. But what you can do is, for PYQs starting from about 2013, for every keyword that you find in any question, that includes in the question as well as the options, make certain notes. Make notes just for 2 to 3 lines for every keyword. That will be enough, because they are repeated many a times, if not as options then as questions. So PYQ note making during that 3.5 months. It varied across subjects. Seen some subjects where the book itself is, like each and every line is important. You better not miss it. For example, Geography Class 11 NCERT. Then I would actually revise again and again from the book itself. In fact, if I would make a note, I would do this thing that I have taken an A4 sheet, I've just, whatever I have understood in that chapter, I would make a quick scribble. And sometimes I would just discard it. क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, वो किताब मुझे फिर भी बार बार खोलनी पड़ेगी. So for things like that, yes, I would just simply read from the book itself. But for some particular themes where I felt that I needed to have my own notes,
फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी मेन्स, आई वुड मेक माई ओन नोट्स डिपेंड वेयर आई वुड ट्रैक द थीम्स फ्रॉम द PYQs. जैसे इकोनॉमी में मैं क्या करती थी कि मैंने एक टॉपिक पकड़ा, सब थीम फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ, उसको हेडिंग दी, जो पिछले PYQs हैं उनको फर्स्ट पेज पे सबसे पहले लिखा. फिर मैंने बेस्ड ऑन द PYQ की कौन सी डायमेंशंस पूछी हैं, कोई कॉज पूछे हैं, कोई रिलेटेड टॉपिक पूछा है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं, कोई सोल्यूशंस पूछे हैं. जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर में आपको टेक्नोलॉजीज़ में कोई सोल्यूशंस पूछे हैं तो मैंने उसको उस थीम्स को नोट डाउन कर लिया PYQ से, तो दैट व्हेन आई मेक माई नोटिंग तो मैं उसी के अकॉर्डिंग टू नोट्स बनाऊँ. तो दैट वाज माय अप्रोच टू दैट. यू हैव टू कस्टमाइज अ लिटिल. जहाँ प्रीलिम्स में कुछ ऐसी किताबें हैं जिनकी तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप मिस नहीं कर सकते हो. तो यू आर बेटर ऑफ रेफरिंग टू द बुक अगेन एंड अगेन.